करंथियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत और उसका 3 बाब. And we're just going to read right from the center of it, verse 9 through 11, but we are going to go through the whole chapter today. The word of the Lord. For we are God's fellow workers. You are God's field. You are God's building. According to the grace of God, which was given to me, as a wise master builder, I have laid the foundation, and another builds on it. But let each one take heed how he builds on it. For no other foundation anyone lay than that which is laid, which is Christ Jesus. क्योंकि हम खुदा के साथ काम करने वाले हैं, तुम खुदा की खेती और खुदा की इमारत हो. मैंने उस तौफीक के मुवाफिक जो खुदा ने मुझे बख्शी, दाना मामार की तरह नींव रखी और दूसरा उस पर इमारत उठाता है. बस हर एक खबरदार रहे कि वो कैसी इमारत उठाता है, क्योंकि सिवा उस नींव के जो पड़ी हुई है और वो यीशु मसीह है, कोई शख्स दूसरी नहीं रख सकता. Let's pray. आए हम दुआ करें. Spirit of the living God, fall afresh on us. खुदावन की जिंदा रूह हम पर अपनी ताज़े मसा को नाज़िल फरमाओ. Please anoint our ears to hear your word. हमारे कानों को मसा करके हम तेरी आवाज को सुन सकें. Anoint our mind that we can comprehend. हमारे ज़हनों को मसा करके हम तेरे कलाम को समझ सकें. And anoint our hearts that we would receive and apply it. और हमारे दिलों को मसा करके हम तेरे कलाम को कबूल कर सकें. We are weak, but you are strong, Lord. हम कमजोर हैं, लेकिन तू मजबूत और कुव्वत वाला. We are not fit to stand and proclaim your gospel. हम इस काबिल नहीं कि हम यहाँ पर खड़े होकर तेरे नाम की मनादी कर सकें. So wrap us in your grace once again. ताकि खुदावन हमें अपने फजल में लिपेट ले, ताकि हम तेरे नाम को इज्जत चला. Yes, Lord. We ask this in Jesus' name. हम यीशु के नाम में ये मांगते हैं. Let's all be seated. आप सब तशरीफ रख सकते हैं. Now we're going through our series through 1 Corinthians. हम अपनी जो सिलसिलावार जो तालीम है उसका आगाज जारी रखते हुए पहला कुरिन्थियों में रहेंगे. So let's recap real quick. और हम जो है दोबारा थोड़ा सा गौर करेंगे पिछली बातों पर. So the city of Corinth is a port city, and people from all backgrounds come and gather here. जो करंथियों का शहर था एक बंदरगाह वाला शहर था और बहुत से लोग इस शहर में आते जाते थे. So this area was greatly influenced by secularism and the worship of false gods. और ये जो इलाका था, यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो आजाद जहन के मालिक थे और यहाँ पर जो है बहुत लोगों का आना जाना. And Paul plants a church there and stays there for 1.5 years. और पालूस ने वहां पर एक कलीसिया को कायम किया और तकरीबन 1.5 साल तक वहां रहा. And there was tremendous growth in this church. और यह इस चर्च में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई. The Bible tells us that they were filled with the Holy Spirit and they were operating in the gifts of the Spirit. और बाइबल हमें बताती है कि वो ना सिर्फ पाकरू से मामूर हुए बल्कि पाकरू की नेमतें भी But उनमें there काम was करती. no spiritual maturity in them. लेकिन उनमें रूहानी बलूगत ना थी. And so Paul takes the time to write this letter to address a few things. और पालूस रसूल ने इसीलिए ये खत उनको लिखा कि उन गलतियों की तरफ निशान He नहीं wanted कर to set some teachings and practices straight. और वो कुछ तालीम को और कुछ अमली कामों को सीधा करना Now in the चाहता. previous chapters that we have already studied, आज पिछले बाबों में जब हमने इसको मुतालिया किया है, Paul addressed just a few things that was stopping their maturity. और पालूस ने चंद बातों का जिक्र किया है जो उन्हें बढ़ने से रोक रही थी. One was the division in the church. एक जो है वो कलीसिया के अंदर तफरका था. Second was that there was wrongful elevation of human leaders. और दूसरी जो है वो जो दूसरी गलती थी वो इंसानों को गैर जरूरी बढ़ाना था. Third was that people felt the need to add their own human wisdom to the proclamation of the gospel. और जो तीसरी बात थी कि लोग जो है वो अपनी हिकमत को इस्तेमाल करके कलाम की मनादी करना चाहते. Now we're going to start in chapter 3 with that in mind. और जो है अब हम तीसरे बाब का मुतालिया करेंगे. And so he begins by saying, and I, brethren, could not speak to you as to spiritual people, but as carnal, as babes in Christ. और वो कहता है कि ऐ भाइयों, मैं तुमसे उस तरह कलाम ना कर सका जिस तरह रूहानियों से, बल्कि जैसे जिस्मानियों से, और मैं और उनमें जो मसीह में बच्चे हैं. Now Paul is speaking to believers. अब पालूस यहाँ पर ईमानदारों से बात कर रहा है. Because we can see that in the language that he's using. क्योंकि हम उस जुबान को देख सकते हैं जिस जुबान को वो इस्तेमाल कर रहा है. He begins by calling them brothers. और क्योंकि वो उनको भाई कहकर He wouldn't पुकार रहा है. call them brothers if they were not believers. और वो उनको भाई कभी ना कहता अगर वो ईमानदार ना He होते. says you are babes
in Christ. और वो कहता है कि तुम अभी तक मसीह में बच्चे हो। That means they have had a new birth experience. इसका मतलब है कि उन्हें नई पैदाइश का तजर्बा हासिल But हो the चुका है। words he's using in this first verse are very strong. लेकिन जो पहली आयत में जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है वो बड़े सख्त हैं। He's not just saying, oh, you're the baby in Jesus. और वो ऐसे नहीं कह रहा कि ओह आप बड़े छोटे बच्चे हैं। No, it's almost like a shunning them down. You're still babies. और इस तरह लग रहा है कि वो उन्हें डांट रहा है कि तुम बच्चे हो। It's not cute what he's doing to them. Sorry. It's not cute. ये नहीं कह रहा कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। He's saying you need to grow up. वो कह रहा है कि तुम्हें बढ़ने की जरूरत है। But he says, but you're also carnal. लेकिन वो ये भी कह रहा है कि तुम जिस्मानी भी There's हो। still areas in your life that are not surrendered to God. तुम्हारी जिंदगी में अभी भी बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहां तुम्हें उसके ताबे होने की Now, जरूरत for है। some time this afternoon, we're going to talk about these three different things. और अभी इस आज दोपहर को हम इन तीन चीजों के बारे में भी We're going to देखेंगे। talk about the natural man. हम जो है नफसानी आदमी के We're बारे going में to talk देखेंगे। about the carnal man. हम जिस्मानी आदमी के बारे में And we're going to देखेंगे। talk about the spiritual और man. हम रूहानी आदमी के बारे में The देखेंगे। first is let's talk about the natural man. आए हम सबसे पहले जो है वो नफसानी आदमी And के there's a बारे में slide that you can look. देखेंगे। और आप स्लाइड की तरफ देख This सकते is हैं। the one who has never received Jesus in their life. और ये वो शख्स है जिसने अपनी जिंदगी में कभी यीशु को In कबूल नहीं किया। 1 Corinthians 2:14 it reads, और अगर हम करंथियों 2 बाब की 14 आयत को पढ़ें, it says a natural man does not accept the things of the Spirit of God. और वहां पर लिखा है कि मगर नफसानी आदमी खुदा के रूह की बातें कबूल नहीं करता क्योंकि वो उसके नजदीक बेवकूफी की बातें हैं। The natural man himself is seated on the throne of his life. तो जो नफसानी आदमी है वो अब उसकी जात जो है उसकी जिंदगी के तख्त पर बैठी है। His life, his interests, they are directed by him. और जो उसकी जिंदगी है वो रोजमर्रा की जिंदगी उसको वो खुद जो है उसकी रहनुमाई If you करता है। look at the slide that I put, और अगर आप इस स्लाइड की तरफ देखें जो you मैंने see यहाँ- that Christ, the cross is outside of his life. अगर आप देखें वहां पर जो सलीब है वो पूरे सर्कल के बाहर है। This is the natural man. और ये जो है नफसानी आदमी They have never repented. ये अभी तक इसने तौबा नहीं They की have not received the sacrifice of Christ to themselves. और इसने अभी तक यीशु की कुर्बानी को कबूल नहीं They किया have not believed in his sacrifice for him. और उसने अभी तक उसकी कुर्बानी पर ईमान नहीं And रखा he is still a carnal, and he is still a fleshly man. और अभी तक वो जो है एक जिस्मानी आदमी है। The second person we're looking at is the carnal और man. दूसरा शख्स है जिसकी तरफ हम देखने वाले हैं वो जिस्मानी आदमी This है। is someone who does have a relationship with God. और ये ऐसा शख्स है जिसका ताल्लुक तो खुदा के साथ He है। has received the Lord in his life, वो अपनी जिंदगी में यीशु को कबूल कर चुका है but he has not fully surrendered to God. लेकिन उसके अभी तक पूरी तरह ताबे नहीं हुआ। This is an interesting one ये बड़ी दिलचस्प बात है because they're not here or there. और ना वो यहाँ है ना ये वहाँ है They're kind of in between. और वो है वो दरमियान के अंदर फंसे हुए हैं। Carnal man is described as a lukewarm Christian. जो जिस्मानी आदमी है वो एक नीम गरम मसीही They है। are not hot and they are not cold. ना वो सर्द है ना वो गर्म है। They know the things of God, वो खुदा के बारे में चीजों को जानते हैं yet they choose to take the way of the world. लेकिन इसके बावजूद वो दुनिया की चीजों को करना पसंद करते हैं। Are you seeing the difference? क्या आप दोनों में फर्क देख रहे हैं? The natural man does not know the things of God, जो नफसानी आदमी है वो खुदा की चीजों के बारे में नहीं जानता but the carnal man knows the things of God. लेकिन जिस्मानी आदमी जो है वो खुदा के बारे में जानता है Yet he refuses to surrender to God. लेकिन उसने इसको इनकार कर दिया कि वो खुदा के ताबे रहे। And even though he knows the things of God, अगरचे वो जानता है कि वो खुदा के the चीजों के बारे में, carnal man lives life in a worldly way. जो जिस्मानी आदमी है वो दुनिया के रविश पर We चलता है। just read from chapter 3 verse 1 अभी हमने जो है तीसरे बाब की पहली आयत में that you पढ़ा are carnal. कि तुम जो हो वो जिस्मानी हो। Church of Corinth, you are carnal people. करंथियों की कलीसिया तुम जिस्मानी लोग हो। You know the Lord. तुम खुदा को जानते You हो। know his sacrifice. तुम उसकी कुर्बानी को जानते You हो। know what he has done. तुम जानते हो कि You उसने have क्या किया received है। his spirit. तुमने उसके रूह को पाया But है yet you choose the ways of the world. लेकिन तुमने फिर भी दुनिया के तरीकों को And if you अपनाया। look at the diagram we have of that, अगर आप इस डायग्राम की तरफ देखें जो आप यहाँ पर है, then you see that Christ is in their life, आप देखते हैं कि मसीह जो है उनकी जिंदगी के अंदर तो है but he is not on the throne of their life. लेकिन वो उनकी जिंदगी के तख्त पर नहीं है।
He's in their life, वो उनकी जिंदगी में है, but he is not the one calling the shots. और वो नहीं है जो उनकी रहनुमाई करता है. The carnal man has a relationship with God, जो जिस्मानी आदमी है उसका खुदा के साथ ताल्लुक है, but he refuses to let God be the Lord and master of his life. लेकिन वो इस बात का इनकारी है कि खुदा उसका आका और मालिक हो. He has a relationship. वो खुदा के साथ उसका रिश्ता है. He knows God. वो खुदा को जानता है. He just can't give in. लेकिन वो बस उसमें जिंदगी नहीं The गुजारता. third is the spiritual man. जो तीसरा शख्स है वो रूहानी आदमी है. He's the one that has relationship and fellowship with God. ये वो शख्स है जिसका ताल्लुक और रिश्ता खुदा के साथ कायम He है. has put Christ in the center of his life. और उसकी जिंदगी का मरकज जो है वो मसीह है. Even if it seems foolishness to the world, he has taken that path. यहाँ तक कि उसे दुनिया के नजदीक ये बेवकूफी है, लेकिन वो फिर भी इसको And अपने in अंदर लिए 1 हुए है. Corinthians chapter 2:15 we read, और जो पहला करंथियों है उसके 2 बाब की 15 आयत में लिखा है, but he who is spiritual appraises all things, yet he himself is appraised by no one. लेकिन रूहानी शख्स सब बातों को परख लेता है मगर खुद किसी से परखा नहीं जाता. And so Paul is saying, I'm addressing carnal people. और पालूस कह रहा है कि मैं जो है वो जिस्मानी लोगों से मुखातिब हूं. I'm addressing a carnal church. मैं जो है एक जिस्मानी कलीसिया से मुखातिब हूं. Loved ones, carnality was in the Corinth church. जो अजीजो जो जिस्मानी पन था वो करंथियों की कलीसिया And के it's अंदर था. in the church today. और आज की कलीसिया के अंदर भी ये And है. it's in many believers और today. ये आजकल बहुत से ईमानदारों में भी है. That many know Jesus बहुत सारे यीशु को जानते and हैं they profess to know और Jesus वो इस बात का इकरार भी करते and they हैं follow और Jesus, वो यीशु की पैरवी भी करते but हैं. yet they buckle when it comes to making him the Lord of their life. लेकिन वो इस बात में जो है वो उसे अपनी जिंदगी का आका नहीं बनाते. And so Paul is saying, I can't give you solid food because you're carnal. क्यों पालूस रसूल कहता है कि मैं तुम्हें सख्त ग़िज़ा नहीं दे He सकता says- कि तुम जिस्मानी He हो. says, every time I come, I got to feed you dudu. और जब मैं आता हूं मैं आपको दूध देना पड़ता है मुझे. Verse 2, he says, I fed you milk and not with solid food, for until now you are not ready, you are not able to receive it, and even now you are not able, for you are still carnal. मैंने तुम्हें दूध पिलाया और खाना नहीं खिलाया कि तुमको उसकी बर्दाश्त ना थी बल्कि अब भी बर्दाश्त नहीं है. Paul's saying, I fed you in the past पालूस कह रहा है कि मैंने तुम्हें माजी में भी when you पिलाया. accepted Jesus as your Lord. जब आपने खुदावन यीशु मसीह को And now a अपनी whole आजादी year and a half has gone. अब एक तकरीबन 1.5 साल गुजर चुका And है I still have to feed you the same और things. मुझे फिर भी आपको वही ग़िज़ा देनी पड़ रही The है. carnal man does not mature. जो जिस्मानी शख्स है वो जो है वो मैच्योर नहीं है They, year after year, they remain the same. और सालों बाद भी वो एक जैसा ही रहता है. And if there is a hindrance in your life, loved ones, अगर अजीजो आपकी जिंदगी में भी कोई if you're रुकावट not है seeing the revelations of God transforming your life, और अगर खुदा के मुकाशफे जो हैं आपकी जिंदगी को तब्दील नहीं कर then रहे perhaps the deep surrender that needs to happen has not yet तो happened in your आपको life. चाहिए कि आप जो है मुकम्मल तौर पर अपने आप को खुदा के ताबे करें. This was a concern for Paul for the Corinth church. और ये पालूस के लिए बड़ी फिक्र की बात And this is a concern for all of us. और ये सब जो है हमारे लिए भी इस बात की फिक्र Are we होनी चाहिए. maturing in Christ every day? क्या मैं मसीह में बलूगत पा चुका हूं Am I reaching to the height of Christ day after day? और क्या मैं मसीह के कद के अंदाजा तक दिन ब Am दिन बढ़ I रहा हूं? conforming to the image of my Lord day in, day out? क्या मैं यीशु की शक्ल पर रोज बरोज बढ़ रहा हूं? And then Paul is saying, I tell you, you're not mature, you're still carnal. और पालूस कहता है कि मैंने तुम लोग को बताया है कि तुम जो है अभी तक बलूगत तक नहीं पहुंचे बल्कि अभी तक जो है वो जिस्मानी हो. To the church of Romans, to the church in Rome, Paul sternly says, don't conform to the patterns of this world. रोमियो के खत में पालूस ने बड़ी सख्ती के साथ ये बात कही कि इस दुनिया के हम शक्ल ना बनो. Because if you do, you are carnal. अगर आप ऐसा करेंगे तो आप जिस्मानी हैं. To the church in Laodicea, in Revelation chapter 3, Jesus says this, I wish you were cold or hot. So then, because you are lukewarm and neither hot nor cold, I am going to vomit you out. लुदीकिया की कलीसिया में मुकाशफा में वहां पर वो लिखते हैं कि ना तो तू सर्द है ना तू गर्म है, इसलिए ना तू सर्द है ना गर्म है, इसलिए मैं तुझे मुंह से निकाल फेंक दूं. Please, loved ones, do not take walking in carnality lightly.
हमें जो है जिस्मानी जिंदगी गुजारते हुए इसको लाइट नहीं लेना We चाहिए. cannot take living a compromised life lightly. हम ऐसी जिंदगी गुजार कर इसको लाइट नहीं ले सकते. Because there is a danger over and over in God's word. क्योंकि कलाम के अंदर बार बार इस खतरे की तरफ इशारा किया गया That है. if we continue to walk in carnality, अगर हम लगातार जो है जिस्मानीपन में जिंदगी if we गुजारेंगे continue to walk in the middle and not choose a side, और हम लगातार दरमियान में रहेंगे, ना इधर जाएंगे ना उधर then जाएंगे, ultimately we will lean back to the ways of our old life. तो क्या होगा कि आखिरकार जो है हम दोबारा अपनी जिंदगी में वापस चले जाएंगे. It speaks of this in the book of Proverbs. ये जो है वो मिसाल की किताब में लिखा है. It speaks of a dog running back to his own vomit. ये वहां पर लिखा है कि जैसे कुत्ता अपनी जो है क्या की तरफ लौटता है. It talks about, loved ones, this is what happens when we choose to walk that compromised life. और इस तरह अजीजों यही बिल्कुल इसी तरह होता है We कि are- जब हम एक जो है मिली जुली जिंदगी गुजारते हैं We are prone to go back to the old ways. और हमारे बहुत ही ऐसा मुमकिन है कि हम वापस जो है पुरानी जिंदगी And में चले Jesus जाएं. is saying, I'm going to spit you out. और खुदावन यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हें मुंह से निकाल फेंकने If को you हूं. look at that imagery and try to understand और it, इसको सिर्फ थोड़ी देर के लिए अब इसको ख्याल करें, देखें and I'm कि not क्या trying मतलब to है. make some doctrinal errors over here, but please understand what's being मैं said. यहाँ पर कोई जो तालीमी जो है गलतियां नहीं उभार रहा, बल्कि मैं चाहता हूं कि आप इसको समझें. When we vomit, जब हम उल्टी करते हैं it's not that it is in our mouth and we spit it out. और ये नहीं कि जो हमारे मुंह में होता है हम उसको फेंक We देते have हैं, actually taken it in, क्योंकि वो हम उसको नीचे अंदर ले चुके होते and हैं, then it is brought back out. लेकिन वो फिर वहां से वापस आता What है. Jesus is saying is like, hey, listen, you were in me. और खुदावन यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि सुनो, तुम मेरे अंदर हो, You received me. तुमने मुझे कबूल You किया है, began to walk with me. तुमने मेरे साथ चलना शुरू But you किया है, just couldn't give up that old way. लेकिन तुम जो अपनी पुरानी You, फितरत को नहीं छोड़ you रहे. just could not be hot. You just could not be cold. So I have to therefore spit it out. ना तुम सर्द हो ना तुम गर्म हो, इसलिए मैं तुम्हें मुंह से निकाल फेंकना. Now, we're not talking about a believer coming in and falling in sin due to weakness. और हम उस बात की बात नहीं कर रहे कि जो है कमजोरी की वजह से जो शख्स जो है ईमानदार जो है वो गलती करता है, Or if he falls in sin. अगर वो गुनाह में गिर जाता The है. Bible tells us, hey, the righteous are going to fall 7 times. और बाइबल कहती है कि सादिक 7 बार गिरेगा And the Lord will raise him up again. और खुदावन उसे फिर उठा खड़ा This is करेगा. not talking about that. हम इस बात पर बात नहीं कर रहे. This is not talking about the righteous struggling and fighting against sin. ये उस बात की तरफ इशारा नहीं कर रहा कि जो एक रास्तबाज है, जो कोशिश करता है खुदा के साथ चलने This is की. talking about knowing well and right and still choosing to do it. और ये इस बात को बयान कर रहा है कि वो सब कुछ जानते बूझते हुए भी खुदा की तरफ नहीं बढ़ रहा. Imagine the face of Christ when that happens. और मसीह की चेहरे को अपने जहन में लाइए कि जब ऐसा आप करेंगे तो क्या होगा. Now Paul goes ahead and begins to list why they're carnal. और पालूस जो है वो आगे जाके वो बताता है, एक लिस्ट देता है कि वो क्यों जिस्मानी. Verse 3, for where there are envy and strife and division amongst you, are you not carnal and behaving like mere men? For when you say, I am of Paul, and another, I'm of Apollos, are you not carnal? क्योंकि अभी तक जिस्मानी हो इसलिए कि तुम में हसद और झगड़ा है, तो क्या तुम जिस्मानी नहीं हुए और इंसानी तरीक पर ना चले? इसलिए कि जब एक कहता है मैं पालूस का हूं और दूसरा कहता है मैं अप्लूस का हूं, तो क्या तुम इंसान ना हुए? Now, there's another list that Paul is going to continue. This is not the only identifiers of carnality. और ये एक और भी लिस्ट है जिसके बारे में पालूस बयान करता है, और सिर्फ यही बातें नहीं जो जिस्मानी शख्स को जाहिर But करती हैं. man, it seems like Paul is emphasizing this thing a lot. और हम देखते हैं कि पालूस जो है इस बात पर बार बार जो है हमारी तवज्जो दिला रहा Like है. chapter 1, he's talking about who says I'm of Paul and who says I'm of Apollos, who says I'm of Cephas. या पहले बाब में वो कहता है कि पालूस कौन है, अपलूस कौन है और कैफा कौन है. And then he goes again in chapter 2 and it's like he's beating the same drum again. और वो जो है दूसरे बाब में भी हम देखते हैं कि दोबारा इसी बात को दोहरा रहा And then है. he's in chapter 3 and he's like right at it again. और वो जो है तीसरे बाब में
फिर उसी बात को लिख रहा है। And so you're like, why is Paul doing this so much? हम सोच रहे हैं कि पौलुस ये बार बार क्यों लिख रहा है, Like, he just stuck on this. और क्यों वो इस पे ही खड़ा हो We're गया। like, come on, move on. Paul, move on. We get it. हम कह रहे हैं कि पौलुस चलो आगे बढ़ो, यहीं पे ना मत रुको। But let me just add a side note here. मुझे यहाँ पर एक बात कहने दीजिए That all scriptures is inspired by the Holy Spirit. कि जो जितना भी कलाम है वो सब पाकरू की तहरीक के साथ It's not लिखा that गया है। Paul is repeating this over and ये over. वो बात नहीं कि पौलुस इस It's बात that को the Holy बार-बार कर Spirit is instructing him to write it over and over. ये वो बात है जो पाकरू उसे बार-बार हदायत कर रहा है कि वो लिखे। Because the Holy Spirit knew that 2,000 years later we were still going to be in this. और क्योंकि पाकरू जानता है कि 2000 साल बाद भी हम इसी बात को पढ़ रहे And the होंगे, church was going to be falsely elevating leaders. और हम वो चर्च जो कलीसिया जो है वो झूठी तालीम को जो है वो ऊपर And उठाएंगी। so Paul is not insisting this, the Holy Spirit is insisting this. ये पौलुस इस बात पर इसरार नहीं कर रहा, बल्कि पाकरू जो है इस बात पर इसरार And कर then रहा he goes in verse 5, he says, then who is Paul and who is Apollos but ministers? Some translations say servants, through whom you believed, as the Lord gave to each one. I planted, Apollos watered, but God gave the increase. So then neither he who plants is anything, nor he who waters, but God who gives the increase. अप्लूस क्या चीज है और पौलुस क्या है? खादिम, जिनके वसीला से तुम ईमान लाए, और हर एक की वो हैसियत है जो खुदावन ने उसे बख्शी। मैंने दरख्त लगाया और अप्लूस ने पानी दिया, मगर बढ़ाया खुदा ने। पस ना लगाने वाला कुछ चीज है, ना पानी देने वाला, मगर खुदा जो बढ़ाने वाला है। Now Paul is using the imagery of a field seed that is and seed that is being sown. पौलुस जो है एक तस्वीर खींच रहा है जहां पर एक खेत है और एक बीज है। And he's talking about the sower going out, and he's talking about the one who waters the plant. और वो इस बात की तरफ हमारे तवज्जो दिला रहा है कि एक बीज बोने वाला वहां पर गया है और फिर पानी देने वाला And he गया। says, I'm the one who sowed the seed. और वो कह रहा है कि मैं हूं जिसने ये बीज बोया है। And he said, Apollos came and he watered it. और वो अप्लूस है जिसने आके इसको पानी दिया And now है। oftentimes we miss this. और अक्सर औकात हम इस बात को भूल जाते हैं। Oftentimes I've heard testimonies, अक्सर औकात हम जो है गवाहियां सुनते हैं, and they said, you know, such and such minister came and they planted the seed of God's word in my life. और हम कहते हैं कि फलां फलां जो है खादम आया था और उसने कलाम का ये बीज मेरी जिंदगी के And अंदर look बोया at था। me, I'm now flourishing. और अब जो है मैं बहुत बढ़ रहा हूं। And praise God for that. हम इसके लिए खुदा का शुक्र करते But हैं। Paul is signifying here that the one who sows the seed and the one who waters it, they're both important. और पौलुस यहां पर इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि जो बीज बोने वाला और पानी देने वाला दोनों अहम शख्स हैं। But the one who gives the increase is more. लेकिन जो इसको बढ़ाता है वो सबसे ज्यादा अहम है। Now, there is no doubt that when the sower comes, इसमें कोई शक नहीं कि जब बीज बोने वाला आता he है needs to come and he needs to remove the thistles from the soil. और वो क्या करता है, वो आता है और झाड़ियों को वो उस जमीन से वो निकालता है। The sower has to till the soil and soften it. और जो है वो जो बीज बोने वाला है उसको जमीन को खोदना पड़ता है और नरम करना पड़ता है। Only then can he sow the seed. तब ही वो जो है वो बीज बो सकता It would है। be very careless if the sower just went and started randomly throwing seeds. और ये बड़ी ही गैर मोहतात रवैया होगा अगर वो आए और जमीन को तैयार किए बगैर बीज फेंकता But जाए। Jesus tells us that even then, लेकिन खुदावन यीशु मसीह कहते हैं that there will still be some seed that will go on the roadside, there will be some that will go in the thorns, and some that will go on the rocky place. खुदावन यीशु मसीह फिर भी कहते हैं कि जब बीज बोने वाला बीज बोता है तो कुछ राह के किनारे गिरेगा, कुछ जो है वो चट्टानों में गिरेगा, कुछ झाड़ियों में गिरेगा और कुछ अच्छी जमीन पर। And loved ones, we can never take lightly the work of the sower. और हम जो है अजीजों जो बीज बोने वाले का काम है उसको कमतर नहीं समझ सकते। A good sower, जो अच्छा बीज बोने वाला a है spiritual seed sower, और जो रूहानी बीज बोने वाला है, they will spend time before God for souls. और वो कुछ वक्त सर्फ करेगा इससे पहले कि They will बीज बोए। spend time that, Lord, when I go, please allow this word to minister to the heart. और वो खुदा के साथ वक्त सर्फ करेगा कि खुदावन जब मैं ये बीज बोऊं तो मेरी मदद करना। They will not just be there to put on a presentation. और वो बस वहां पर जाएंगे और ये नहीं कि एक जो है प्रेजेंटेशन They देंगे। won't just be following a flow chart or a script.
और वो ये नहीं कि कुछ आपको तस्वीरें दिखाएंगे, They'll weep over that seed. वो जो है उस बीज पर रोते हैं They will say, Lord, let this seed catch good soil. और वो कहते हैं कि खुदावंद ये बीज अच्छी जमीन And पकड़े। praise God for the men who have sown the right seed in your life. हम खुदा को मुबारक कहते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने अच्छा बीज I बोया। give God glory and honor for the men who have sown good seed in my foundational life. और मैं उस खादम के लिए खुदा का शुक्र करता हूं जिसने मेरी जिंदगी के अंदर अच्छा बीज बोया। Paul said, I was the one who have sown the seed in you. पालूस कहता कि मैं वो हूं जिसने आपकी जिंदगी में बीज बोया। He says sowing seed is like giving, it's like child labor, like a mother giving birth. और वो कहता है कि बीज बोना ऐसे ही है जैसे किसी औरत को दर्दे ज़ै लगे हो और वो बच्चे को पैदाइश दे। But the work of the one who waters is also very significant. लेकिन जो पानी देता है वो भी बड़ा अहम शख्स है। Remember the context this is written in. आप इस जो इसका सियाको सबाक है उसको जहन में रखें। Many might not be able to comprehend what I'm going to say. और बहुत सारे शायद इस चीज को ना समझे जो मैं कहने जा रहा हूं। Because they're not familiar with how farming worked back then. और वो जो है वो उनको नहीं पता कि माजी में काम कैसे होता रहा है। खेतों में काम कैसे होता है। खेतों में कैसे काम होता रहा है। We're used to the timed sprinkler systems. Sorry. Timer sprinkler systems. और वहां पर जो है वो एक सैराब करने के लिए मुख्तलिफ तरीका इस्तेमाल किया जाता है। And if you look here, you try to do some research, you know everybody's got these special hoses that turn on a certain way and they water your plants. और आपने यहाँ पर देखा होगा कि यहाँ पर जो है कुछ ऐसे जो पाइप होते हैं जो है वो उनके आगे जो है स्प्रिंकलर लगे होते हैं और अच्छे तरीके से काम करते हैं। Yeah, that was not the case of the one who had to water back then. और उस माजी में जो पानी देने वाला था उसके पास ये जो है वो चीजें ना थी। If where the field was and where the water was, there was a great gap, they had to create a canal. और जो जहां जमीन होती थी और जहां पानी होता था उनके दरमियान एक जो बड़ा फासला होता था और उसको जो है थाला खोदना पड़ता था कि पानी को जमीन तक लेके आए। That's vigorous laboring. और ये एक जो बड़ा ही मेहनत वाला काम था। They had to make sure that the water can get to the place where the seed is. और उनकी ये कोशिश होती थी कि पानी उस जगह तक पहुंच जाए जहां पर बीज बोया गया। They were not the water. वो पानी नहीं थे। But they had to go to the source and get the water to the seed. लेकिन वो पानी के मंबा के पास जाते थे और पानी को I hope this is helping someone understand. मेरा ख्याल है कि आप लोग को समझ आ रही है। Now, if they could not create a canal, और अगर वो उस थाले को ना खोदते, then there was even more labor involved. और उसमें उससे भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती। They had to manually carry buckets, और उनको जो है बाल्टियां भर भर कर पानी, and they would carry them on themselves, और वो उन बाल्टियों को अपने साथ and they उठाकर, would go and manually sprinkle the field. और फिर वो जो है उनको उठाकर पूरे खेत में पानी को Now, फैलाते। if only the seed was sown, और अगर जो बीज बोया जाता है, and the one to water did not come, और अगर जो पानी वाला जो है वो ना आए, that seed would go nowhere. और वो जो बीज है वो कभी It would नहीं उगेगा, quickly die of और वो dehydration. बीज मर जाएगा और वो उस पे कुछ नहीं होगा। Now, when we think of water, और जब हम पानी के बारे में we सोचते think हैं of being refreshed. और हम समझते हैं कि हमें तरोताजा We get करता है, freshness when we drink water. हम ताजा हो जाते हैं इसको Same पीकर। is for the seed. और इसी तरह बीज के साथ भी When है। the seed receives water, जब बीज पानी को हासिल it is करता है refreshed. और वो जो है तरोताजा हो But जाता है, more than that, लेकिन इससे भी बढ़कर the seed is stretched. और जो है बीज जो है वो फैलता है It swells up. और ये फूलता है It retains the water that has come. और उस पानी को अपने अंदर जज़ब कर लेता है And then at due time, it begins to release it. और जो सही वक्त पर उस पानी को We वो जो है thank God निकालता है। वो हम खुदा का शुक्र करते हैं for the men who came and who sowed the seeds in our lives. और हम उन आदमियों के लिए शुक्र करते हैं जो आए और जिन्होंने बीज बोया। We thank God वो हम खुदा का शुक्र करते for हैं the women who came and who sowed the seed in our lives when we came into faith. और उन बहनों के लिए जो आई और जिन्होंने खुदा का But we बीज also बोया। thank God और हम खुदा का उनके लिए भी शुक्र करते who हैं came and who stretched our faith, और जिन्होंने हमारे ईमान को आके बढ़ाया who made us last and sustain under pressure, और उन्होंने हमें अब सिखाया कि किस तरह हम खुदा प्रेशर के अंदर रह सकते who हैं went and labored and brought water for और us. जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ Can we पानी को honor हम those तक men and पहुंचाई women है। who have ministered in our lives हम in उन that सारे way? बहनों और भाइयों को खुदा के खादमों को इज्जत की निगाह से देखते हैं। Now in verse 8, he continues. और 8वीं आयत में वो जारी रखते He हुए says, कहते हैं, now pay attention. I made that in bold text. He says, now he who plants and he who waters are
one. which was Verse 8. verse 8, okay. और वहां पर लिखा है कि लगाने वाला और पानी देने वाला दोनों एक हैं. They're one and the same. They're one in. And each one will receive his own reward according to his own labor. लेकिन उन दोनों में से जो है हर एक जो है अपने काम के मुआफिक अजर पाएगा. For we are God's fellow workers. और हम जो हैं खुदा के साथ काम करने वाले हैं. You are God's field. आप खुदा की खेती हैं. You are God's building. आप खुदा की इमारत हैं. Now Paul is emphasizing this point और पालूस रसूल जो है इस बात की तरफ जोर देकर कहता because है. now he's just changing the imagery all of a sudden. और अचानक से जो है वो एक दूसरी तस्वीर He's like, हमारे if you सामने didn't लेकर आता है. understand what I meant by field, और पहले जो है आपने उस खेत को देखा. and if you didn't understand that, let me give you another way to see it. अगर आपने उस बात को अभी तक नहीं समझा तो मैं आपको एक और तस्वीर देता हूं. You're a building that's being built up. आप वो इमारत हैं जिसको तामीर किया जा रहा Now है. before we go any further, और इससे पहले कि हम थोड़ा आगे let चलें, me say this to each one of you. मैं चाहता हूं कि मैं आप हर एक से ये बात कहूं. You are a building आप एक इमारत हैं and you are being built up. और आप जो है वो तामीर किए You're जा not रहे हैं. done yet. अभी आपका काम खत्म नहीं हुआ. God is still working on आप you. खुदा आप पर अभी तक काम कर Can रहा है. someone say amen? कोई तो कहे आमीन. God is still working on me. खुदा जो है अभी तक मुझ में काम कर He's रहा है. still building me. अभी तक वो मुझे तामीर He's कर still रहा है. reinforcing some वो things. मेरी जड़ों को मजबूत कर रहा है. He's still elevating me. वो फिर अभी से मुझे बढ़ा He's रहा है. continually building upon me. मुझे लगातार बढ़ा रहा है. Hallelujah. हालेलुया. Verse 10. और 10वीं आयत में लिखा है, According to the grace of God which was given to me as a wise master builder, I have laid the foundation, and another builds on top. But let each one take heed how he builds on it. For no other foundation can be laid than that which is laid, which is Jesus Christ. 10वीं आयत में लिखा है, मैंने उस तौफीक के मुआफिक जो खुदा ने मुझे बख्शी दानाम अमार की तरह नींव रखी और दूसरा उस पर इमारत उठाता है. बस हर एक खबरदार रहे कि वो कैसी इमारत उठाता है, क्योंकि सिवा उस नींव के जो पड़ी हुई है वो यीशु मसीह है, कोई शख्स दूसरी नहीं रख सकता. Now Paul is talking now about our salvation. पालूस रसूल अब हमारी नजात के बारे में बात कर The रहा है. exclusiveness of Christ being the only foundation. और वो कह रहा है कि मसीह ही वाहिद वो बुनियाद है जो हो सकती है. The foundation of our salvation is Christ. जो हमारी नजात की जो बुनियाद है वो खुदावंद यीशु It's मसीह है. nothing else, loved ones. और इसके अलावा और कोई नहीं है. It is the imputing of my sins upon him and the imputing of his righteousness on me. और ये जो है मेरे गुनाह उसके खाते में गिने गए और उसकी रास्तबाजी मेरे That's the खाते में गिनी गई. foundation of the gospel. और यही जो है खुशखबरी की बुनियाद है. It is that my sins are paid for all in all. और जो मेरे गुनाहों का जो है दाम चुकाया गया है वो मुकम्मल दाम It चुकाया is गया है. paid in full. और ये जो है मुकम्मल तौर पर इसको Not पे by किया गया है. any of my works. और ये नहीं कि मेरे किसी काम Not की by बदौलत any of my efforts. और ना मेरी किसी कोशिश की Not by बदौलत any of my fastings and prayers. और ना किसी मेरी दुआ रोजे की वजह Not by से any of my giving of alms. और ना कोई मेरा जो है वो खैरात और हदिया की वजह से. Everything that pertains to my salvation is the grace and love of Jesus alone. और जो कुछ भी मेरी निजात के साथ ताल्लुक है उसका वो सिर्फ उसका निजात उसका फजल और उसका रहम है. That's the foundation of our salvation. That's the foundation of our salvation. ये हमारी निजात की बुनियाद That है. grace is extended to us. और फजल जो है हम तक पहुंचा. We were worthless. और हम जो है We were dead in our sins. हमारी कोई वक़्त ना थी और हम गुनाह में मुर्दा थे. But yet Christ came and died. लेकिन खुदावंद यीशु मसीह इस The दुनिया में death आए. that should have been upon me. Sorry. The death that should have been upon me. जो मौत मुझ पर थी That came on Jesus. और वो यीशु मसीह पर आई. And the life that is Jesus's. और यीशु के पास That जो now जिंदगी थी, belongs to me. अब मैं उस जिंदगी का मालिक He हूँ. paid my sin that I could not pay. उसने मेरे गुनाहों का दाम चुकाया जो मैं नहीं अदा कर सकता So I था. could live the life that he lives. ताकि Amen. वो मैं उस जिंदगी को गुजारूं That's जो the वो जिंदगी रखता foundation of our है. salvation. और यही जो है हमारी निजात की बुनियाद And है. Paul is saying that foundation is laid in Jesus and Jesus alone. और वो पालूस कहता है कि ये न्यू जो है वो सिर्फ मसीह में रखी That's गई. our foundation, और church. यही हमारी जो बुनियाद है कलीसिया. Jesus is the immovable, ultimate source of our salvation. और खुदावन यीशु मसीह जो है ऐसा मजबूत और मजबूत हमारी बुनियाद है.
that we cannot be shaken. और हम जो है हलाए नहीं जा सकते। Isaiah says that he is the cornerstone of our faith. यशायाह कहता है कि वो कोने के सिरे का पत्थर है। Isaiah says he is the rock of ages. वो कहता है कि वो हमारी चट्टान है। Everyone say Jesus is my firm foundation. आप हर एक आप में से कहे कि Jesus is my He is our firm foundation. क्योंकि वो हमारी मजबूत He बुनियाद is है। my firm वो foundation. मेरी मजबूत बुनियाद है। I stand behind this pulpit not because of who I am, मैं इस पुलपट के पीछे खड़ा हूँ इसलिए नहीं कि मैं but कौन हूँ। because of who Jesus is मैं इसलिए कि यीशु कौन है and because what he has done. और Amen. इस बात पर कि वो कौन है और उसने क्या किया And है। you live a life of freedom, loved ones. और आप जो आजादी की जिंदगी गुजार रहे हैं, Freedom from your sins. आजादी जो गुनाह से है, Freedom from the guilt conscience. आजादी जो जुर्म से है, You live that freedom because of Jesus. और आप ये आजादी जो आपको Can मिली है, somebody यीशु की वजह से say मिला है। amen in the कोई house? कहे आमीन। Now Jesus is not just the foundation of our salvation. यीशु ना सिर्फ हमारी नजात की बुनियाद है, Jesus is the foundation of our marriages. और खुदावन यीशु मसीह Somebody हमारी say शादी amen. की बुनियाद भी है। कोई कहे आमीन। Listen, if our salvation can't be shaken if Jesus is the foundation, then our marriage can't be shaken if Jesus is the foundation. जिस तरह अगर हमारी नजात को कोई नहीं हिला सकता अगर उसकी बुनियाद यीशु मसीह है, तो इसी तरह हमारी शादी की बुनियाद भी अगर यीशु मसीह है तो उसको कोई नहीं हिला सकता। Jesus is the foundation of our marriage. खुदावन यीशु मसीह जो है He's हमारी the शादी की foundation of our बुनियाद, homes. वो हमारी बुनियाद है, He's हमारे the घर की, foundation of our family. वो हमारे खानदान की बुनियाद He's the है, foundation of everything that is upon me and that is being built up. और वो उस सारी चीज की बुनियाद है जो मुझ में है और जो मुझ में तामीर की जाए। Amen. Colossians 1:17 in the New Living Translation, it says, Christ was before all things and all things are held together in him. Amen. और वो सब चीजों से पहले और उसी में सब चीजें कायम रहती हैं। Everything is secured in him. और हर चीज उसमें कायम है। If everything is on him and his foundation, और अगर वो उसमें सारी चीजें हैं और then वो nothing बुनियाद can है, be shaken. और कोई भी Hallelujah. चीज उसको हिला नहीं सकती। And Paul is telling the church, the foundation of your faith. और पालूस कहता है कि is आपके Jesus. ईमान की बुनियाद जो है वो यीशु है। Hallelujah. हालेलुया। Verse 12. Now, if anyone builds on this foundation with gold and silver and precious stones, wood, hay, straw, each one's works will become clear. For the day will declare it, because it will be revealed by fire, and the fire will test each one's works of what sort it is. If anyone's work which he has built on it endures, he will receive a reward. Everyone say reward. And if anyone's work is burned, he will suffer loss, but he himself will be saved, yet so as through fire. Okay. अगर कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बेशकीमत पत्थरों या लकड़ी या घास या भूसे का रद्दा रखे तो उसका काम जाहिर हो जाएगा, क्योंकि जो दिन आग के साथ जाहिर होगा वो उस काम को बता देगा, और वो आग खुद हर एक का काम आजमा लेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ बाकी रहेगा वो अजर पाएगा। Now the word works, you see I've underlined it over and over and over. आपने देखा होगा कि जो लफ्ज काम है मैंने बार बार उसको जो है अंडरलाइन This is not works for our salvation. ये जो वो काम नहीं जो हमारी निजात का This है, is works for building up the kingdom of और God. ये वो काम है जो खुदा की बादशाही को तामीर करने This के is लिए, works for building up one another. और ये वो काम है जो एक दूसरे को तामीर This is करने works के लिए, of building up the church of Christ. और ये वो काम है जो कलीसिया को So तामीर Paul करने is के लिए। saying the foundation Jesus himself has laid. और जो पालूस कहता है कि खुदावन यीशु मसीह जो न्यू है जो उसने खुद रखी And है, now folks are coming along and they're building on top of it. और जो है दूसरे लोग आ रहे हैं और उस न्यू पर जो है अब उसको And तामीर he's कर रहे saying हैं। some are working, they're putting their back into this labor. और वो जो है वो कह रहा है कि कुछ लोग जो है वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं इस They're न्यू के in ऊपर, it steadfast, they're diligent, they're laboring in the field. और वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, वो बड़ी लगन के साथ जो है इस पर काम कर रहे These हैं। are the ones who are putting gold, silver, and precious stones. और वो लोग हैं जो सोना चांदी और कीमती पत्थरों की जो है वो And then there are others who are slacking in the work of God. लेकिन कुछ लोग हैं जो वो खुदा के काम में थोड़ा पीछे हैं, They're doing it a little half-hearted. और लेकिन वो जो है दो दिला होकर काम कर रहे They're हैं, doing it when it's convenient. और वो उस वक्त काम करते हैं जब आसान They're हो, doing it when they're available. और वो काम करते हैं जब वो And even when आसानी they're से- doing it, I got so much to say. Sorry. Even when they're doing, y'all got it.
Ooh, sometimes. And even when they're doing it, they got so much to say. और वो जब कुछ जो काम करते हैं तो उनके पास बहुत कुछ कहने के लिए These are the होता है। ones who are doing it with hay and with straw. और ये वो लोग हैं जो घास और फूसे से वो तामीर कर रहे हैं। When you think of this, you think about the master और जब है आप ये सोचते हैं कि जब आप मालिक के बारे में सोचते हैं who left his servant with talents. और वो एक मालिक जो है जिसने जो है कुछ लोगों को जो है अशरफियां दी। To some he gave 5, to one he gave 2, to one he gave 1. और किसी को 5 दी, किसी को 2 दी और किसी को 1। And the Bible says the master came back. और वो कहते हैं कि मालिक जो है Everybody said the master's coming back. और सब कह रहे हैं कि बाद जो है मालिक आ रहा है। And as soon as he came, he said, "Come on, give account." और उसने सबको बुलाया, आओ मुझे बताओ कि हिसाब क्या है। He said, "Come on, tell me what have you done with what I have given और वो you?" कहता है कि आओ मुझे बताओ जो मैंने तुम्हें दिया था What उसके साथ have तुमने you क्या done? किया? तुमने उसके साथ क्या And किया? I tell you, loved ones, we will also have to give account. और अजीजों मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें भी हिसाब देना We पड़ेगा will have to give an account for everything God has given to और us. हमें हर उस बात का हिसाब देना पड़ेगा जो खुदा ने हमारे Every ज़िम्मे लगाया है। talent, every gift, every resource he's given us. और हर जो वो जरिया और हर जो खुदा ने हमें तोहफा दिया है, गिफ्ट दिया है, उस सब का हिसाब If देना he's पड़ेगा। given you a car, he'll ask for account. If he's given you a house, he'll ask you account for it. What did you do with it? और वो जिसने अगर आपको गाड़ी दी है या घर दिया है तो वो इसके बारे में भी आपसे हिसाब It's not just It's not just about getting a new car and then putting the music in the bag. गड्डी देती है सुन। ये सिर्फ ये नहीं कि मैंने नई गाड़ी ले ली है और इसमें मसीही गीत लगा लिए और ये मुझे यीशु ने नई गाड़ी दी What है। did you do with the car that Jesus gave आपने जो you? इस गाड़ी के साथ क्या कर रहे हैं जो खुदा How ने many आपको दी people है? you brought to the church with और that आप car कितने God लोगों को gave जो you? कलीसिया के अंदर लेकर How आते many हैं people did you lend a hand to when you had what you had? और कितने लोगों की आप मदद करते हैं जो आपको खुदा ने दिया उसके साथ। So praise God that God gives us good gifts. और खुदा का शुक्र है कि खुदा ने हमें बड़ी अच्छी चीजें But दी हैं। there is going to be an account for it. लेकिन इन सब चीजों का हिसाब खुदा मांगेगा। Those who have built with silver, stone, and precious stones. और जिन लोगों ने जो है उस पर इस बुनियाद पर जो है सोने चांदी और कीमती पत्थरों का रद्दा रखा They are है, going to go under fire. वो जो है वो उनके काम जो है वो आग में से And those who गुजरेंगे। have done it with straw, hay, and wood, they will go under fire. और जिन्होंने लकड़ी घास और जो है भूसे का रद्दा रखा है वो भी आग में से गुजरेगा। And the work itself, और जो काम जो है खुद that will be consumed with fire. और जो काम जो काम आग से जल जाएंगे The laboring we have done will be consumed with fire. और जो हमने भी मेहनत की है वो सब जो है आग से The आजमाई running जाएगी। around we have done for the kingdom of God will go under fire and और be हर वो tested. काम जो हमने किया है वो आग से आजमाया जाएगा। Now the ones whose works last, और जिसके काम जो है वो आखिर तक they are कायम going रहेंगे to get rewards. और उनको अजर मिलेगा। Please make no mistake about it. There will be a reward ceremony in heaven. और इसके बारे में आपकी कोई गलतफहमी नहीं होनी I चाहिए look कि forward to आसमान that. पर जो है वो अजर आपको मिलेगा। Many years back, I read a book by Paul Benware called Believer's Payday. और बहुत साल पहले मैंने एक किताब पढ़ी थी जिसमें लिखा था कि जो मसीहियों का जो है वो पे डे होगा। There, every Friday back in the day used to be a payday for the men and women who worked. और जो पिछले बहुत साल पहले हर जुम्मे को जो है वो तनख्वाह का And दिन people have होता था। switched that up. Sometimes it's on a Wednesday, sometimes it's on a Thursday. Like the paydays change. और फिर जो तनख्वाह का दिन है वो बदलता रहा। And people look forward to their payday. Amen. जो तनख्वाह वाले दिन लोग बड़े खुश होते थे। We're going to get a payday when we get to heaven. और इसी तरह जो है जब हम आसमान पर जाएंगे तो हमें भी वहां पर एक Let me पे डे give you a होगा। verse so you don't think I'm just making this up. अब मैं आपको एक आयत देता हूं, आप ये ना समझे कि मैं सिर्फ अपने आप से ये कह रहा हूं। Go to Revelations 14:13. अब जो है मुकाशफा उसका 2 बाब 14वां बाब। उसका 14वां बाब Verse 13. और उसकी 13वीं Then I heard a voice from heaven saying to me, "Write, blessed are those who are dead in the Lord from now on. Yes, Spirit says that they may rest from their labors and their works will follow them." और फिर मैंने आसमान में से ये आवाज सुनी कि लिख, मुबारक है वो मुर्दे जो अब से खुदावन में मरते हैं। रूह फरमाता है कि बेशक क्योंकि वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे और उनके अमाल उनके साथ होते हैं। फिर मैंने निगाह की कि No, their amals are going with them. ओके थैंक यू, और उनके अमाल जो हैं उनके साथ होंगे। They will go with them. वो अपने Our अमाल works are going to go with us. और वो अपने अमाल के साथ वहां जाएंगे। Now, why do I need to take my works with me? और क्यों मुझे अपने अमाल अपने साथ Go to जाने की 2 Corinthians 5:10. अभी जो है दूसरा करंथियों 5 बाब की 10 आयत में For जाइए। we must all appear before the judgment seat of Christ.
हम सब, क्योंकि जरूर है कि मसीह के तख्ते अदालत के सामने हम सब का हाल जाहिर किया जाएगा। No, not me. I will not be before that. I'm getting direct access. नहीं, मैं मेरा राब्ता। Now everybody's going to stand before the throne of Christ. कलाम में लिखा है कि हर कोई जो है वो मसीह के तख्ते अदालत के सामने खड़ा होगा। And then it says that each one may receive the things done in the body according to what he has done, whether good or bad. और यहां लिखा है कि हर शख्स अपने उन कामों का बदला पाए जो उसने बदन के वसीला से किए हैं, खा भले हों खा बुरे। When we're saved, जब हम बचाए गए थे, and we continue to labor in the kingdom of God, और हमने जो है मसीह के जो खेत में है काम करते रहे, be assured of this, loved one, there's rewards for that. और अजीजों, मैं आपको यकीन दहानी इस बात की कराना चाहता हूं कि इसका अजर है। Now the Bible says when that fire is going to come, और बाइबल कहती है कि जब वो आग आएगी, everyone is going to make it through. और हर किसी को उसमें से गुजरना पड़ेगा। Everyone's going to get on the other side. और जो है हर किसी को दूसरे उसके पार जाना पड़ेगा। But some are just going to make it by the edge. और वो लिखा होगा कि कुछ ऐसे होंगे जो बहुत ही मुश्किल से बचेंगे। You ever watch Road Runner? आपने रोड रनर देखी है? Or any cartoon? Anybody watch cartoon? और किसी ने भी किसी तरह के कार्टून देखे? So many Christians here, they don't watch TV. God bless you. और बहुत सारे यहाँ पर मसीही हैं या कोई टीवी नहीं देखता। आपको बरकत दे। And you know what they do is like they would have like one of the, whether it's like Tom and Jerry or whoever is like the one chasing, they would go and they would get like burned in fire, right? And they're just standing there like all dark, black and ashed up, right? Many Christians are going to be like that. अगर आपने कार्टून देखा होगा तो टॉम एंड जेरी में जब वो एक दूसरे को भाग रहे होते हैं और आग में से गुजरते हैं तो वो जो है वो बिल्कुल जो है वो राख की तरह वो नजर आता है और बहुत सारे क्रिश्चियन जो है वो हो सकता है कि इसी तरह नजर आए। I'm not saying you're going to be a cartoon. मैं ये नहीं कह रहा कि आप कार्टून हैं, but you're just going to make it. आप जो है वो इस तरह से उस पार by the skin of your teeth. Sorry? Just by the skin of your teeth, you're going to make it. और आप होगा कि बड़ी मुश्किल से उस because you labored not diligently. क्योंकि आपने जो है उस दिल जमाई से you labored lethargically. जो आपने जो है वो सुस्ती के साथ you labored half-heartedly. आपने दो दिला होकर you didn't build as Christ built you. और आपने उस तरह से तामीर नहीं किया जैसे मसीह ने आपको तामीर किया। Verse 16. जो 16वीं आयत है। He says, do you not know that you are the temple of God and that the Spirit of God dwells in you? If anyone defiles the temple of God, God will destroy him, for the temple of God is holy, which temple you are. Verse 10. 16. क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है? और अगर कोई इस खुदा के मकदस को बर्बाद करेगा तो खुदा उसको बर्बाद करेगा, क्योंकि खुदा का मकदस पाक है और वो तुम हो। Now Paul doesn't just use this phrase this one time, he uses it again in chapter 6. पालूस ने ये जो लफ्ज हैं ये सिर्फ एक दफा इस्तेमाल नहीं किए बल्कि बार-बार इस्तेमाल किए। So but in this particular context he's using it in plurality. और इस जो है सियाको सबाक में जब पालूस इस आयत को इस्तेमाल करता है तो ये जो है वो जमा के सीगे में इसको यूज करता है। In chapter 6 he talks about an individual referring to morality. और जब वो जो पहले जो वो जिक्र करता है तो वो इनफरादी तौर पर इसको जाहिर करता है और ये जो है वो पाकीज़गी के एतबार से जाहिर करता है। And so Paul now is addressing the whole church. लेकिन पालूस अब जो है पूरी कलीसिया से You want to get this down in your spirit. और जो है आप इसको अभी थोड़ी देर में समझेंगे। He's saying you are the temple of the living God. और वो कह रहा है कि आप सब जो हैं खुदा का मकदस हैं। It's plural. He's talking to the church as one. और वो जो जमा के सीगे में बात करता है कि आप सब जो कलीसिया है एक हैं। He's saying you keep elevating people. और आप जो है लोगों को हमेशा ऊपर उठाते रहते हैं। You keep elevating Paul. You keep elevating Apollos. और आप जो है पालूस को कभी ऊंचा उठाते हैं, कभी अप्लूस को ऊंचा उठाते हैं। But you are the temple of the living God. लेकिन तो आप जो है वो जिंदा खुदा का and मकदस his है। spirit dwells in you. और उसका रूह आप में बसा हुआ है। This isn't just like the temple as a whole. This is the word for the inner holy of holies. और ये सिर्फ ये नहीं कि ये उस
मकदस की बात कर रहे हैं जो बाहर वाला हिस्सा है, बल्कि ये पाक तरीन मुकाम की बात He's करता saying है। the presence of God is in you. और वो कहता है कि खुदा की हजूरी आपके अंदर है, There's no need to be elevating those who are building. और वो उन लोगों को ऊंचा उठाने की जरूरत नहीं जो आपको तामीर कर रहे हैं। Honor them, bless them, but the Lord's Spirit dwells in you. उनकी इज्जत करें, उनको जो कुछ भी है उसके साथ करें, लेकिन खुदा का रूह आपके बीच में है। Are we understand? क्या आपको समझ आ रही है? It was in the church. ये जो है कलीसिया के अंदर है। He was emphasizing that the Spirit dwells in the church. वो इस बात पर जोर दे रहा है कि जो रूह है वो Why are you कलीसिया के so अंदर है। fixated on people? तुम क्यों लोगों पर निगाह रखे हुए हो? Loved ones, in the early church, अजीजो, जो इब्तदाई कलीसिया है, there were not additional special services. वहां पर जो है वो जो है एडिशनल जो है वो इबादतें नहीं होती। There wasn't like an additional healing meeting or additional revival meetings. और वहां पर ये नहीं होता था कि जो है अतवार की रेगुलर इबादत के अलावा जो है वो हीलिंग क्रूसेड हो रहे हैं या दूसरी Everything इबादत। happened in the gathering. और वो जो कुछ भी होता था वो कलीसिया के मजमा में The होता था। unsaved would walk in और जो है जो गैर नजात याफ्ता थे वो आते थे, and they would encounter the presence of God. वो खुदा की जो है हजूरी उनके Their साथ मिलती hearts थी, would be convicted. और उनके जो पाकरू जो है They would fall to their knees and repent. और वो तौबा करते थे। If anyone was amongst them who was not well, और अगर कोई ऐसा शख्स होता जो बीमार होता, they would receive their healing. और वो शिफा को हासिल करता। Miracles were a normal thing within the church. मोज़ात जो थे वो आम सी बात The थी। Bible said it followed those that believed. और वो बाइबल कहती है कि वो उनको जो 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 ईमान लाते थे उनके दरमियान मोज़ात होते थी। And can you see how that has changed now? और आपने देखा कि अब ये कैसे तब्दील हो गया। I hope we're thinking in the spirit. मेरी उम्मीद है कि आप रूह में इसको देख रहे होंगे। I think primarily this has shifted. और हम देखते हैं कि ये बुनियादी तौर पर बहुत तब्दील हो चुका है। That the need for all of these special events is there because this is not happening in the regular church. क्योंकि ये सारे जो है अब जो है हम मुख्तलिफ इबादत करते हैं क्योंकि अब ये कलीसिया में नहीं हो The रहा। gifts and talents and blessings of individuals need to be elevated because it's not within the church. जो लोगों की जो नेमतें हैं और उन लोगों को हम इसलिए ऊपर उठाते हैं क्योंकि अब ये And बातें Paul is कलीसिया में saying नहीं हो you रही। are the temple of the living लेकिन God. पालूस कहता है कि तुम खुदा का You मक़दस are हो। where the sacred places that the Holy Spirit dwells. तुम वो मुकद्दस और पाक जगह है जहां पर पाक रूह रहता I'm है। not opposed to having separate meetings and special services. Sorry. I'm not opposed to it. मुझे जो है वो स्पेशल मीटिंग्स करने की जरूरत नहीं है, I host them myself. और जो है मुझे उसे अपने अंदर होना चाहिए, मेजबानी करनी We चाहिए। host them as Trinity. We host special services. हम जो है ट्रिनिटी में जो है वो स्पेशल सर्विसेज करते We're हैं। not opposed to that. हम इसके खिलाफ नहीं हैं। That's not the point. ये जो है ये नुक्ता नहीं है जिसको मैं I बयान कर believe रहा हूं। they serve a significant point for evangelism. और यह मैं समझता हूं कि ये जो है वो बशारत के लिए बड़ा अहम नुक्ता But है। the danger becomes when we become chasers of people and not chasers of God. लेकिन खतरा इस बात में है कि जहां हम लोगों के पीछे लग जाते हैं ना कि खुदा के पीछे। And when we elevate the anointing of someone more than the one who has given the anointing. और हम जो है उस शख्स के मसा को ज्यादा अहमियत देते When we begin- हैं बनिस्बत इसके कि जिसने उसे मसा And किया। when we begin chasing miracles and not the miracle worker himself. और जब हम जो है मोजा करने वाले के पीछे भागते हैं ना कि उससे जो मोजा की कुदरत And we देने वाला begin है। chasing spiritual experiences but never bending our knee to make Jesus our Lord. और हम रूहानी तजर्बों के पीछे भागते हैं लेकिन अपने घुटनों पर नहीं आते कि उस तजर्बे को हासिल करें। That becomes dangerous. और ये बात है जो वो खतरे का And बायस है। Paul's like, you are the temple. और पालूस कहता है कि तुम खुदा का You मक़दस are हो। the people amongst whom Jesus will come. और पालूस कहता है कि तुम वो लोग हो जिनके बीच में खुदा आता When है। you gather 2 or 3, Jesus will show up because he promised it. जब तुम 2 या 3 जमा होते हो तो खुदा वहां पर आमौजूद होता He है। will come, he will heal, he will touch, he will uplift. That's what he will do when he वो will आपके come. दरमियान में आएगा, आपको छुएगा, आपको बढ़ाएगा और आपको शिफा देगा। But we have to be honest with this one thing. लेकिन हमें जो है इस चीज के साथ बड़ी ईमानदारी से जवाब देना चाहिए। Jesus does not show up everywhere. और खुदावंद यीशु मसीह हर जगह पर अपना ज़हूर नहीं। It doesn't matter how good the music is, how nice the lighting is, and how decent the air conditioners are. और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि म्यूजिक कितना अच्छा है, लाइट कैसी है और एसी कैसा है। Jesus will come where he's honored. यीशु उसी जगह पर आता है जहां पर उसके नाम को जलाल दिया जाता है When he is given the due respect. और उस इज्जत
जब उसको वो इज्जत दी जाती है, He's जिसके वो not काबिल है। coming if he's not honored. और वो नहीं आता जब उसको इज्जत नहीं दी He's जाती। not looking for lip service, loved ones. वो जो है वो हमारे जो है वो खाली जो है वो जो है होंठों की सर्विस नहीं चाहता। He's looking for a heart that is full of gratitude and adoration. वो चाहता है कि हमारा दिल जो है उसके, And when he finds that in the church, और जब वो कलीसिया में ये बात he will show up. और वो कलीसिया में And miracles will follow those who believe in that place. कलीसिया के अंदर होते हैं, Somebody say amen. कोई तो कहे आमीन। Maybe you're looking for a miracle, chasing it around, but God needs you to know that he's here. और आप हो सकता है कि आप ऐसे शख्स को जो मौजज़ात दिखाने वाला है उसके पीछा कर रहे हो, लेकिन खुदा जो है यहाँ पर मौजूद है। What if your miracle was to come by the prayer of an ordinary person here? क्या मुमकिन है कि एक आम शख्स जो है आपके लिए दुआ करे और आपका मौजज़ा ज़हूर पजीर हो जाए? You're like, no, I need that preacher to pray for me. लेकिन आप कहेंगे नहीं, वो ही शख्स है जो मुझ पे दुआ करेगा। Oh, I need that ooh feeling to come through my body, मुझे जो है वो, so I can get my healing. मुझे वो जज्बाती पन चाहिए ताकि मैं अपनी निजात को हासिल कर सकूं। But what if he can use the innocent prayer? क्या एक शख्स जो है एक छोटी सी दुआ करे, who's sitting right next to you, और हो सकता है वो आपके साथ बैठा हो, and you lean over and you say, sister, I'm going through this, pray for me. और आप हो सकता है कि आपने साथ बैठे हुए And God can do it. बहन, और आप मेरे लिए दुआ The करें। और हो point सकता है that खुदा Paul आपके is काम करे। making, जहां पर जो पालूस नुक्ता नजर अपना पेश he's करना like, चाह रहा stop elevating people. है, आप जो अभी तक लोगों को ऊंचा उठा रहे हैं, Jesus is in the house. और खुदावंद यीशु मसीह Somebody की तरफ- say amen. कोई कहे आमीन। Verse 18. जो 18वीं आयत में लिखा है, Let no one deceive himself. If anyone amongst you seems to be wise in this age, let him become a fool, that he may become wise. For the wisdom of this world is foolishness with God. For it is written, he catches the wise in their own craftiness. And again, the Lord knows the thoughts of the wise, and they are futile. कोई अपने आप को फरेब ना दे। अगर कोई तुम में अपने आप को इस जहान में हकीम समझे तो बेवकूफ बने, ताकि हकीम हो जाए, क्योंकि दुनिया की हिकमत खुदा के नजदीक बेवकूफी है। चुनाचे लिखा है कि वो हकीमों को उन्हीं की चालाकी में फंसा देता है, और ये भी कि खुदावन हकीमों के ख्यालों को जानता है कि बातिल है। Can we agree that the world has its own value system? क्या हम इस बात पर इत्तेफाक करते हैं कि दुनिया में अपनी एक जो कदर का निजाम है, The world has its own thought process. और इस दुनिया में इनका अपना एक सोचने का अंदाज The है, world thinks this is the way this is and this is the way that is. और वो कहते हैं कि नहीं, ये इस तरीके से हो सकता है या उस तरीके से हो सकता है। Now, the Lord had to deal with that in me. और खुदावन ने इस बात को मेरे अंदर जो है वो इसको ठीक किया। I hope He deals with some of you in this too. मेरी उम्मीद है कि आप में से भी हो सकता है खुदावन किसी को इस बात Man, को I ठीक used to go on thinking, boy, I am street smart. और मैं समझता था कि मैं जो है ना बहुत होशियार हूं जो स्ट्रीट स्मार्ट। I did. It's like, I know how the system goes. मुझे पता था कि ये कैसी चीजें, सिस्टम निजाम कैसे चलता है, And I used to know how to work the system. और मुझे पता था कि निजाम में कैसे इसको चलाना है। I used to think I had a good read on people. और मेरे पास ये भी एक मैं लोगों को पढ़ भी सकता था। I used to say I can come in the room and read the room. मैं कमरे में आता था और मैं कहता था मैं लोगों को जान सकता हूँ, I can go ahead through that. और मैं जो है वो बड़ी आसानी से I know how this should be this way and this should be this way. और मुझे पता था कि ये इस तरह से होना चाहिए। और I know I'm talking about some of you. मुझे पता है कि मैं जो बात कर रहा हूँ आप कुछ समझ रहे हो कि ये तो मेरे बारे में बात कर रहे हैं। But the Lord had to bring me to the place of just saying, hey, I'm a fool compared to this system. खुदा मुझे उस मुकाम पर लेकर आया कि जहां मैंने अपने आप को पहचाना कि मैं तो बेवकूफ हूं इस दुनिया के मुकाबले। I don't need that wisdom. मुझे इस दुनिया की विजडम, I don't need the street smarts. मुझे जो है वो ऐसी होशियारी नहीं चाहिए। Because the Bible says that street smart is foolishness. और क्योंकि बाइबल कहती है कि ऐसी होशियारी जो है वो बेवकूफी है। And if the world thinks I'm fool, अगर दुनिया समझती है कि मैं बेवकूफ हूं,
that means I'm on the right track with God. इसका मतलब है कि मैं सही सिमत में जा रहा हूँ। What's wrong with you, Ezra? You know, you could do this, you could do this, you could slick it this way. हाँ, वो हो सकता है कि आपको कि नहीं ये क्या कर रहे हो, तुम इस तरह से कर सकते हो, तुम उस तरह से कर सकते I thank God my wife had a big part in helping me see that. हो। और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि मेरी बीवी ने जो है मेरी बड़ी इसमें मदद की इस बात We की। just got to stick to the line that God has drawn. और खुदा ने मेरे अंदर जो है वो जो इस चीज को समझने के लिए मुझे अकल और दनाई दी। Just walk the line that God has drawn. और खुदा ने मुझे कहा कि जो लाइन जो खत मैंने खींचा है उसके तरफ बढ़ते जाओ। And then everything else, let me figure it out. और जो है उसके बाद जो है इन चीजों Now the world can think I'm a fool. दुनिया समझे कि मैं बेवकूफ That's हूँ, okay. मैं इसके लिए And the world can think you're a fool. दुनिया आपको भी समझती है Be कि आप okay बेवकूफ to हो। be considered a fool to the world. इसमें कोई मजाक का नहीं कि अगर But in the sight of God, लेकिन अगर आप खुदा की नजर में you are a recipient of His wisdom. अब आप जो है उसकी जो है वो You could be a fool to the world. हिकमत को हासिल करते हैं तो आप दुनिया की नजर में बेवकूफ हैं। You are a fool to the world, but you're a recipient of God's wisdom. आप दुनिया की नजर में तो बेवकूफ हैं लेकिन आप खुदा की हिकमत को हासिल करने Let's वाले। wrap it up in verse 21. और अब आए हम जो है आखिरी वर्ष में जो 20वीं आयत में पढ़ते हैं और इसको खत्म करते हैं। Therefore, let no one boast in men. और ये भी के 21 बस आदमियों पर कोई फख्र ना करे। Right there, Paul's at it again. और फिर जो है पालूस इस बात को बयान कर रहा है। Like, stop hyping up people. वो कह रहा है कि लोगों को जो है वो जरूरत से ज्यादा उठाना बंद करें। He said, for all things are yours. कि वो कहता है कि सारी चीजें जो हैं वो तुम्हारी हैं। Isn't that what your Bible's reading? क्या आपकी बाइबल में ये लिखा हुआ है? Whether Paul, Apollos, or Cephas, or the world, or life, or death, or things present, or things come, all are yours. खा पालूस हो, खा अपलूस, खा कैफा, खा दुनिया, खा जिंदगी, खा मौत, खा हाल की चीजें, खा इस्तकबाल की, सब तुम्हारी हैं। And verse 23. और 23वीं आयत में लिखा है। If you're able to, let's read that out loud together. और अगर आप मेरे साथ मिलकर इसको आयत को पढ़ सकते हैं तो मेरे साथ पढ़िए। And instead of saying you are, say I am. इस जहां पर लिखा है कि तुम, वहां पे कहें कि मैं। And I am Christ. And Christ is God. Say it one more time. And I am Christ. And Christ is God. मैं यीशु का हूं और यीशु खुदा है। आमीन। मैं मसीह का हूं और मसीह खुदा। और मसीह खुदा है। Praise God. Let's stand to our feet and pray. What a God. What a God. What a God. Can we bless Jesus before we close in prayer? Let's give him a big hallelujah. Honor him in the house. Glorify his name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. What a God you are, my Lord. What a God you are.